Dear student, today we are starting the new chapter of Business Study Class 11. This is chapter number 7 and the chapter name is Sources of Business Finance. My dear student, what's the meaning of sources of business finance? Sources of business finance means money, paisa. And what are the sources? If we want to start any business and we are doing any business, then how many sources to collect the fund, to collect the finance? कहाँ कहाँ से हम पैसा लेके आ सकते हैं? If we want to start any business, definitely if I have some money, then definitely I can invest in the business, and if I don't have, so definitely I can take from the bank loan. तो इट्स मीन्स सम ऑनर फंड, सम बोरोड फंड. कुछ हम ऑनर फंड से लेंगे, मालिक से लेंगे, कुछ बोरोड फंड से करेंगे, उधार से करेंगे, एंड टोटल कंबाइंड इज अ टोटल विल बी sources of business finance. So in this chapter we have only two sources of business finance, honor fund and borrowed fund. But in honor fund how many sources, and in borrowed fund how many sources, in this chapter we will discuss in detail. My dear students, this is the meaning. Now we can come here. First of all, this is a meaning. Business finance refer to capital fund. Business finance refer to capital fund. My dear student, capital fund, capital, the amount by which a businessman can start the business. So this is a capital fund, वो पैसा जिससे business start किया जाता है. And credit fund means if you don't have the money, तो definitely you can borrow. आप borrow कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं from anyone. तो this is credit fund invested in the business, जो कि business में invest किया जा रहा है. तो अगर business में आप पैसा invest करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू हैव ओनली टू सोर्सेज. अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली हम कहेंगे दिस ऑनर फंड, मालिक का पैसा है. अगर आप पैसा नहीं है आपके पास तो डेफिनेटली आपको उसे उधार लेना पड़ेगा, और हम उसे बोरोड फंड कहेंगे या फिर हम उसे क्रेडिट फंड कहेंगे. दिस इज क्रेडिट फंड. फाइनेंस मीन्स मेकिंग मनी अवेलेबल व्हेन इट इज नीडेड. माय डियर स्टूडेंट, फाइनेंस का मतलब है कि जहाँ पर भी आपके पैसे की ज़रूरत है वहाँ पर आप पैसे को कलेक्ट करें, इकट्ठा करें, सोर्सेज देखें कहाँ से पैसा आ सकता है, एंड व्हाट इज़ द इजी सोर्स एंड व्हाट इज़ द वेरी बेनिफिशियरी सोर्स. तो दिस इज बिजनेस फाइनेंस. माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम फॉरवर्ड. बिजनेस फाइनेंस मे बी डिफाइंड एज प्लानिंग, रेजिंग, मैनेजिंग and controlling all the money used or capital of any kind used in connection with business. My dear student, business finance का scope यहाँ पर clear किया गया है. This is scope of business finance, and we can see that the scope of business finance is very large, because they are saying that business finance may be defined as planning. तो इट्स मीन्स यू हैव टू प्लान कि कहाँ से हमें रेज करना है, कैसे रेज करना है. तो डेफिनेटली आप यू हैव टू प्लान, देन रेजिंग, आप इसको आपको रेज करना है, देन मैनेजिंग. इट्स मीन्स इफ़ यू हैव कलेक्ट द मनी, यू हैव कलेक्ट द फाइनेंस, तो हाउ टू मैनेज. क्योंकि अगर आपके पास पैसा आ गया और आप उसे आपको मैनेज करना नहीं आया तो डेफिनेटली सब कुछ बेकार हो जाएगा. तो डेफिनेटली मैनेजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड कंट्रोलिंग, एंड आपको पैसे को, फंड को कंट्रोल कैसे करना है. एंड दीज ऑल फैक्टर्स आर इन दिस चैप्टर. दिस इज सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो यहाँ पर हमने क्लियर देखा है कि अगर हम स्कोप की बात करें तो इट्स अ वेरी लार्ज स्कोप. इट्स मीन्स नॉट ओनली दिस दैट वी आर कलेक्टिंग फंड्स एंड फाइनेंस फ्रॉम क्रेडिट एंड फ्रॉम ऑनर. नॉट ओनली दिस, you have to planning, then managing, raising, managing, then controlling. So these all are the factors you have to use in the sources of business finance in this chapter, my dear student. Now we can see here nature and significance of business finance. Clear they are saying no one can start business or run an enterprise without adequate funds. बिना एडिक्वेट फंड के कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता, ना चल सकता, कुछ नहीं हो सकता. नो, एवरी बिजनेस requires
सम मनी, कुछ पैसे की जरूरत हर बिजनेस को पड़ेगी टू स्टार्ट, विच इज कॉल्ड इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल मीन्स स्टार्टिंग कैपिटल, जहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इनिशियल कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नेचर एंड साइज of the business, nature and size of the business. My dear student, they are clearly they are saying that the amount of capital required, कितने पैसे की हमें ज़रूरत है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इट्स डिपेंड ऑन द नेचर। नेचर मीन्स किस तरह का आप बिजनेस कर रहे हैं। आपका स्पोर्ट्स का बिजनेस है, आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, आपका किस चीज़ का बिजनेस है, तो दिस अ नेचर। ऑयल का बिजनेस है, तो व्हाट्स द नेचर ऑफ अ बिजनेस, व्हाट इज द साइज, किस लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं, व्हाट इज द साइज, व्हाट इज द स्केल ऑफ अ बिजनेस। तो इस बातों पे डिपेंड करता है कि आपका कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कैपिटल ज़्यादा होगी या कैपिटल कम होगी। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर दे आर सेइंग बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। My dear student, we know very well about it that if we want to start any business, if we want to run any business, so definitely without capital, without finance, we can't start, we can't run the business. So they are the many things, they are the 7 things, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, भाई हमें एक बिज़नेस चलाना है तो कितनी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, कहाँ कहाँ अपने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर राइट, इट इज़ रिटन इन दिस असाइनमेंट, while starting a business, finance is required to procure fixed assets and also for meeting day-to-day expenses. My dear student, in the first point they have cleared कि अगर आपको यहाँ पर कोई फिक्स एसेट्स खरीदनी है, डे टू डे रिक्वायरमेंट को अटेंड करना है, तो डेफिनेटली फाइनेंस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, माय डियर स्टूडेंट, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कैपिटल इज अ फिक्स कैपिटल एंड सेकंड कैपिटल इज अ वर्किंग कैपिटल। माय डियर स्टूडेंट, आपने केवल एक ही कैपिटल सुनी होगी। अगर हमने बिज़नेस को स्टार्ट करा, बिज़नेस में आए हैं, तो डेफिनेटली इनिशियल कैपिटल बिज़नेस के अंदर आ गई है। हमने उसी कैपिटल के बारे में सुना है कि कैपिटल वो होती है, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया कैपिटल से। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने 10 लाख रुपए लगा के बिज़नेस स्टार्ट करा है, लेकिन उस 10 लाख रुपए में से आपने 5 लाख रुपए की बिल्डिंग, 1 लाख रुपए का फर्नीचर और 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, कितने इन्वेस्ट कर दें माय डियर स्टूडेंट? 5 लाख की बिल्डिंग, 1 लाख की मशीन, 1 लाख का फर्नीचर, तो 5, 6, 7, यू हैव इन्वेस्टेड 7 लाख रुपीज़ इन द फिक्स एसेट्स, इन द फिक्स एसेट्स। तो वहाँ तो फिक्स एसेट है, इन द एसेट साइड वी कैन से दिस अ फिक्स एसेट, बट इन द कैपिटल लायबिलिटी साइड डेफिनेटली वी विल से देन दिस इज अ लायबिलिटी, वी विल से दिस इज अ कैपिटल एंड दिस अ फिक्स कैपिटल। 7 लाख रुपये इज अ फिक्स कैपिटल, बट अभी भी कुछ बचा रह गया है, 3 लाख रुपये बचे रह गए, दिस अ कैश एंड दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। That is called the working capital, क्योंकि उससे ही तो वर्क होगा, उसी कैश तो वर्क होगा। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएं तो वर्किंग कैपिटल का एक फार्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स मीन्स कैश या कैश में कन्वर्ट होने वाली सारी चीज़ें जो कि 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो कैश भी कह सकते हैं, कैश में कन्वर्ट होने वाली चीज़ें, लाइक डेटर 1 साल में कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में। तो कैश एंड कैश में कन्वर्ट होने वाली चीज़ें करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जिनका मुझे 1 साल पेमेंट ही करना है, करंट ईयर में पेमेंट करना है। तो अगर मैं एग्जैक्टली अगर करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करूँ तो एग्जैक्टली वर्किंग कैपिटल को हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ के लिए? क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ वर्किंग कैपिटल इज नॉट इन द बिजनेस देन वी कांट रन द बिजनेस माय डियर स्टूडेंट। तो नाउ दिस इज 7 पॉइंट जिसकी वजह से हम देखते हैं व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस, किन वजह से हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड एंड नाउ यू कैन अटेम्प्ट this assignment. Thank you very much, my dear student.